Hello everyone. In previous video, we discussed about pharyngeal arches. We talk about derivatives of pharyngeal arch 1 and 2 and starting to discussing about pharyngeal arch 3. Some technical issue we stopped there. So in this video we continue with pharyngeal arch derivative 3. So we talk about the artery derived from the pharyngeal arch 3. Pharyngeal arch 3 derived the common carotid artery and mostly internal carotid artery. From proximal portion we derived common carotid artery and from distal portion internal carotid artery. Okay, and nerve derived from it, glossopharyngeal nerve, muscle stylopharyngeus. Okay, only muscle which supplied by glossopharyngeal nerve is stylopharyngeal. Glosso means chamakna and stylo mean 1 minute. Glosso means shine and style mean in mirror shine karna. So how you remember style in mirror? So style gloss. Okay, stylopharyngeal is supplied by glossopharyngeal nerve and third arch derivative is glossopharyngeal nerve. And which nerve supplies stylopharyngeal? Glossopharyngeal. Okay, that's how you remember it. Okay, so main skeletal element derived from third arch is lower rim and greater remaining. You know the smaller horn of hyoid bone is derived from second arch and the greater horn of hyoid bone is derived from third arch. Okay, lower rim and greater horn of hyoid bone. Okay, next derivative, next arch is fourth, pharyngeal arch fourth. Pharyngeal arch of fourth, in which from which what is derived? Artery is left में क्या होएगा? Arch of aorta. Left there is arc of aorta and right there is a right subclavian artery. Okay, right there is subclavian artery. Okay, and nerve supply from fourth is the superior laryngeal nerve, branch of cranial nerve 10th की cranial nerve की branch है vagus. ठीक है, derived from fourth pharyngeal arch. I am talking about fourth. Okay, next is the sixth. Some skeletal element derived from the fourth pharyngeal arch is laryngeal cartilage. Okay, and mainly muscle supplied from the muscles of larynx and pharynx. Mainly cricothyroid muscle. First is the cricothyroid muscle. All muscle of palate except thyropharyngeus. All muscle of pharynx except stylopharyngeus. Okay, these are derived from fourth pharyngeal arch. Okay, all muscle of pharynx and all muscles of palate PP and cricothyroid. Three muscles are supplied from pharyngeal arch fourth. First is the cricothyroid muscles. Okay, second one all muscle of palate except thyropharyngeus and all muscle of pharynx except stylopharyngeus. Stylopharynx किससे होती है? Glossopharyngeal nerve से and derivative of third pharyngeal arch. Fourth pharyngeal arch से palate, pharynx एंड क्रिकोथायरॉइड. ठीक है, ये पैलेटोफेरेंजियल कम्प्लेक्स से डिराइव क्या करते सप्लाई होते हैं ना मसल्स. सो ये मेन फोकस. ठीक है, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व होती है इसकी डेरिवेटिव. ठीक है, इसकी ब्रांच आई है 10th नर्व की वेगस की. ओके, नेक्स्ट इज द सिक्स क्रेनियल नर्व. सिक्स फेरेंजियल आर्च की नर्व कौन है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. मेनली यू रिमेंबर लेरेंजियल नर्व पार्ट एंड फ्रॉम ये सप्लाई किसको करती है? ठीक है, यू नर्व सप्लाई. सो वही मसल इसकी डेरिवेटिव. तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई ऑल मसल ऑफ लैरिंक्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड. ठीक है, लैरिंक्स की सारी मसल्स को सप्लाई करेंगी लेकिन सिर्फ क्रिकोथायरॉइड किससे होती है? सुपीरियर लैरेंजियल नर्व से सप्लाई होती है. सो डेरिवेटिव किसकी होगी? फोर्थ आर्च की. ओके, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज
ब्रांच ऑफ रेनल ऑफ 10th वेगस की है, बट दे सप्लाई द ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। ओके, ठीक है। लैरेंजियल मसल कौन कौन सी है? दे मेंशन देयर cricoarytenoid, thyroidnoid vocalis, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, thyroid vocalis and arytenoids। ठीक है। स्केलेटल एलिमेंट, स्केलेटल लैरेंजियल एलिमेंट, ठीक है। लैरेंजियल कार्टिलेजेस इज डिराइव्ड, ठीक है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट के फेरेंजियल आर्च के बारे में हमने बात कर ली, जो कि थिकनिंग्स होती हैं मेसोडर्म्स की, ठीक है। इसमें हमने बोला 5th आर्च क्या डिसअपियर हो जाती हैं, बाकी कितने बच गए हमारे पास? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 6। 5th विल डिसअपियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट pharyngeal pouches and pharyngeal cleft. First of all, we usually know about pharyngeal pouches. First of all, what is pharyngeal pouches? Is endodermal out bulging. Okay, I will show in the diagram. Okay, this is endodermal layer, inner. Okay, this is endodermal layer, internal, and these bulge in between the, okay, this is the, this portion is, what is this? This is out bulge, endodermal out bulge, which is known as pharyngeal pouch. Okay, pharyngeal pouch. And in ectodermal there is a cleft, inward हो रही है ना, so this is inward deeping of ectoderm is pharyngeal cleft, and endodermal out bulging is pharyngeal pouch, ठीक है। So how many pouches are there? 1, 2, 3 and 4. 4 pouches are there, okay, 4 pouches there, and cleft 1, 2, 3 and 4. 4 cleft are there, okay, 4 pouches, 4 cleft, and there is a 5 pharyngeal arch. Okay, clear? So first we talk about pharyngeal pouches, endodermal pharyngeal pouches, जो कि है out bulging of endodermal layer. So first endodermal pouch से हमें क्या मिलता है? First endodermal pouch derives to tubotympanic recess. tubotympanic recess जो होगी, tubotympanic recess बोल सकते हैं उसे, and mainly derive क्या करते हैं उसे? Auditory tube which come in contact with epithelial line of first pharyngeal, जिससे क्या बन जाता है? एक्सटर्नल acoustic meatus, ठीक है। मेनली यू रिमेंबर एक्सटर्नल acoustic meatus, okay. Distal portion will form tympanic cavity and proximal portion will form auditory tube, so that's why it's known as tubotympanic recess. The distal portion will form tympanic cavity and proximal portion auditory tube, all of the external acoustic meatus, ठीक है। second pharyngeal pouch, endodermal pharyngeal pouch से हमें क्या मिलेगा? पैलेटाइन टॉन्सिल, मेनली क्या बनेगा? पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, ग्रो एंड फॉर्म द पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड से इंफीरियर पैराथायरॉइड, एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड किससे होता है? डोर्सल से, डोर्सल एंड थाइमस फ्रॉम वेंट्रल थाइमस, एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड फ्रॉम डोर्सल, ठीक है। इसे बोलते हैं, वैसे तो हम बोलते हैं पैराथायरॉइड थर्ड, और फोर्थ से थायरॉइड होता है पैराथायरॉइड फोर्थ, तो लेकिन पैराथायरॉइड थर्ड से क्या बनता है? इंफीरियर, लेकिन फोर्थ से बनता है सुपीरियर। तो ये क्या होता है? सुपीरियर पैराथायरॉइड जो बनता है हमारा नीचे, वो क्या करेगा? असेंड कर जाएगा अपवर्ड, अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। सुपीरियर पैराथायरॉइड है ना, तो बनेगा तो डाउनवर्ड ही, लेकिन वो क्या करेगा? असेंड कर जाएगा। और जो इंफीरियर पैराथायरॉइड है वो क्या जाएगा? डिसेंड कर जाएगा नीचे, ठीक है।
सो थर्ड फेरेंजियल पाउच से क्या डेरिवेट होता है हमारा, इंफीरियर पैराथायरॉयड फ्रॉम डोर्सल, एंड वेंट्रल से क्या होएगा, थाइमस। फोर्थ से क्या होएगा हमारा, फोर्थ पाउच से हमारा डेराइव होता है सुपीरियर पैराथायरॉयड, ठीक है, तो ये डोर्सल से होता है, ये डोर्सल से हमारा इंफीरियर और सुपीरियर, और वेंट्रल से क्या होएगा, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, ठीक है, क्लियर। अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी दैट इज मीन्स व्हाट इज मीन, लेटरल थायरॉयड, ठीक है, क्लियर। From ventral of fourth pouch derives lateral thyroid. Okay, altimobranchial body is derivative remnant of fifth pouch in lower animals में मिलता है। altimobranchial body is found in remnant of fifth pouch, ठीक है, इसे बोलते हैं कोडोफ्रेंजियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। altimobranchial body means कोडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स। सी सेल ऑफ थायराइड जो होते हैं वो इससे डिराइव्ड होंगे, जो कि कैल्सिटोनिन बनाते हैं, ठीक है। ये मिलता है फिफ्थ पाउच के रेमिनेंट से, ठीक है। वैसे तो 4 ही पाउच होते हैं, लेकिन अगर उसके रेमिनेंट्स थोड़े से बहुत रह जाएँ तो वो बोलते हैं अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी कोडोफेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सी सेल ऑफ थायराइड सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, क्लियर। नाउ वी कम टू क्लेफ्ट, first there is only 2 clefts. First cleft, ठीक है, penetrate underlying mesenchyme and form, जो ectodermal layer है वो penetrate करेगा इन underlying mesen, क्या बना देता है, external auditory meatus, ठीक है। ये क्लेफ्ट है ना, क्लेफ्ट क्या होता है, एक ओपनिंग हुई, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एक ओपनिंग है हमारी, ओके। तो ये एक फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनती है, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से क्या बनती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेसिस। अदर जो हैं सारे टिपिकली डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड क्या करेगी, ओवरग्रो करेगी। सेकंड वाली जो हमारी क्लेफ्ट है, सेकंड है हमारी क्लेफ्ट, आई विल शो यू डायड्रोन। तो ये सेकंड वाली ना ऐसे आउटग्रो करेगी, आउटग्रो एंड प्रोलिफेट, ठीक है। ओवरलैप इसको ओवरलैप कर लेगी रिमेनिंग क्लेफ्ट्स को, ठीक है। और ये क्या करेगी, मर्ज विद द एक्टोडर्म ऑफ लोअर नेक सच दैट रिमेनिंग जो क्लेफ्ट्स हैं वो लूज कंटैक्ट विद आउटसाइड से उनका कोई कंटैक्ट नहीं रहा। तो ये जो क्लेफ्ट सेकंड वाली क्लेफ्ट से अब ये बंद होगी ना सारी, यहाँ इसकी ये आउटग्रो करगी, हम ओपनिंग नहीं है, सिर्फ एक ही ओपनिंग रही, वो कौन सी रही, फर्स्ट वाली से क्या बन गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। बाकी ओपनिंग्स जो है हमारी क्लोज होगी, ठीक है। 4 क्लेफ्ट्स जो हमारे पास 4 क्लेफ्ट थी ना, सेकंड जो है वो आउटग्रो करेगी थर्ड और फोर्थ के ऊपर, एंड देन उनकी आउटर एनवायरनमेंट से कोई भी क्या रहेगी, वो नहीं रहेगी, कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो पहले तो वो एक टेम्परेरी एक्टोडर्मल लाइन कैविटी होती है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल साइनस। अगर वो रिमेनिंग रह जाती है हम किसी के, तो आप इससे क्या हो जाता है, सर्वाइकल साइनस, ठीक है। इसके बारे में सुनाओ, किसके फ्रंट में होती है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के पास में होती है, नहीं है, ठीक है। पहले ये तो सर्वाइकल साइनस बोलते हैं इसे हमें, ठीक है, बनती है ये, फिर लेकिन थोड़े टाइम के लिए सर्वाइकल साइनस बनती है, पर टेम्परेली डिसअपियर, थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है डेवलपमेंट के टाइम। अगर ये परसिस्ट कर जाती हैं तो फिर वो सर्वाइकल साइनस हो जाता है उनको, ठीक है। तो बाकी सब तो कनेक्टिव टिश्यू से फिल हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाएंगी और मेनली, ठीक है। बाकी सारी अगर रहेंगी तो मेनली, तो अगर वो परसिस्ट करेंगी तो वो सर्वाइकल सिस्ट बन जाएंगी, साइनस से क्या बनेगी, सिस्ट बन जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। अगर फ्लूइड रह गया वहाँ पे, क्लोज कैविटी होगी, देन इट विल फॉर्म सिस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, क्लियर। So we discuss about pharyngeal arteries, pharyngeal endodermal pouches, and ectodermal clefts derivatives, okay. This is the main point discussing it. Some remaining point I will okay, this is
is the whole point I will discuss. Okay, one thing remaining from it, which remain from it is the somites. जो सोमाइट्स बताती हूँ. व्हाट इज दिस सोमाइट? सोमाइट इज this segmental area dividing the posterior. Okay, this is a somites. फर्स्ट सेकंड जहाँ पे लिखा हुआ है. Okay, फर्स्ट एंड सोमिटोमियर्स. दिस इज अ मेसोडर्मल ओरिजिन्स. ठीक है, इससे क्या होता है, मसल्स डिराइव होती हैं. मसल्स डिराइव होती हैं तो सोमिटोमियर्स 1 और 2 नंबर है. जैसे इससे क्या होती है हमारी 1 और 2 से सुपीरियर, मीडियल एंड वेंट्रल रेक्टाइल, ऑल रेक्टाइल मसल्स जो कि सप्लाई करती हैं ओक्लोमोटर मसल से. ठीक है, ये मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी जब और मसल्स, जैसे हम टंग मसल्स पढ़ेंगे एंड दैट ऑल द पार्ट पढ़ेंगे तो वो हम तब बता देंगे. मेनली आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ऑसिपिटल सोमाइट्स, जो कि सोमाइट नंबर 2 to 5 है. ठीक है, 2 to 5 नंबर होगा ऑसिपिटल सोमाइट, जिससे कि क्या होता है, मसल ग्रुप क्या होता है इससे, लिंगवल मसल्स. टंग की मसल्स मेनली डिराइव्ड होती हैं. कौन सी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक लिंगवल मसल्स, स्टाइलोग्लोसल्स, स्टीनियोग्लोसल्स, ऑल सारी मसल्स. पैलेटल मसल्स होती हैं, लेवेटर वैली पैलेट, एक्सेप्ट कौन सी, पैलेटोग्लोसिस. All the tongue muscles are derived from and extrinsic and intrinsic derived from occipital somites except palatoglossus which are derived from arch 4. ठीक है, जो कि पैलेटोग्लोसिस है वो आर्च 4 से डिराइव होती है. बाकी सारी मसल्स जो हैं वो एक है इससे डिराइव होती है, ऑसिपिटल सोमाइट. और इसकी नर्व कौन सी है, 12th नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व. क्लियर? होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर, लाइक, subscribe this video. Okay, if you have any doubt please comment in the video. I will surely reply on your comment and solve your doubt. Okay, please go through all these charts. I will share this if you comment. Okay, if you comment on the video I will share this flowchart so that you easily understand and remember. Okay, thank you everyone.